Hello guys, welcome back to our YouTube channel Literature Study by Satish. Today I am going to record a lecture, the second part of Look Back in Anger. I have already covered the first part of this drama by John Osborne. This is the second part in which I cover Act second and Act third analysis. जो भी यूट्यूब पे या इस चैनल पे जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें. Now start the drama Look Back in Anger, written by John Osborne, Part 2. 8 second scene first. 8 second start with the character are working as usual, like Helena, Jim, Alison, and Cliff. Is living with the Alison and Jimmy Potter. Nearly 2 weeks past, Helena has been staying. Means in second एक्ट हेलना आ जाती है. फर्स्ट एक्ट में प्लानिंग होती है कि हेलना आने को, सेकेंड एक्ट में जब वो आ जाती है तो सबके साथ रहने लगती है और लगभग 2 सप्ताह का टाइम बीत चुका है हेलना को उन सबके साथ रहते हुए. अलीशन डिस्क्राइब ऑल द सर्कमस्टांसेस इन विच शी मैरिड टू जिमी पोर्टर. सो सर्कमस्टांसेस मींस her family was against the marriage of Jimmy Potter with Alison. Basically, her mother was so much against. Alison's parents had opposed the marriage, but Alison had disregarded their opposition. तो पहले उसकी फैमिली ने मना किया, वो शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अलीशन ने किसी की नहीं मानी और लव मैरिज की जिमी पोटर के साथ. सो शी वाज टोटली अगेंस्ट हर फैमिली. For several months has been past of marriage, but Jimmy had not their own accommodation. Actually, Jimmy Potter and Alison both were living on rent. She is living with Hug Taylor, a friend of Jimmy. जो अलीशन रहती है जिमी पोटर के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, वो फ्लैट में रहते हैं. और जो फ्लैट किसका है, हग टैनर है, जो जिमी का फ्रेंड है, उसकी मदर रहती है वहाँ, उसका फ्लैट है. अलीशन डिस्क्राइब हग टैनर मोस्ट इल मैनर्ड मैन. और अलीशन उनको पसंद नहीं करती, ना हग टैनर पसंद करती है, ना उसकी मदर को पसंद करती है. भाई जिमी so much attached with the mother of Hug Tanner. Jimmy Potter opened a sweet hall with the help of Tanner's mother. Actually, after doing graduation, Jimmy Potter was running a sweet stall with Cliff, and that was opened with the help of Tanner's mother. Jimmy and Tanner's mother were quite fond of each other. दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. कौन? मिसेस टैनर यानी हग टैनर की मदर और जिमी. Alison told Helena about her play with Jimmy, the play of bears and squirrel game, imagining themselves to be animals. अलीशन और जो जिमी पोटर है, ये दोनों एक गेम खेलते हैं. जब भी झगड़ा हो जाता है, जब प्ले एंड होता है, जब भी वो दोनों स्क्वायरल बेयर का गेम खेलते हैं, वो उसको मार्वलस बेयर बोलते हैं, वो उसको स्क्वायरल बोलता है. When Helena and Alison were talking, Jimmy and Cliff joined the two women. जब दोनों बात कर रहे होते हैं, हेलना और अलीशन बात कर रही है इधर, उधर जिमी पोटर और क्लिफ बात करते हैं. Like usual, Jimmy is criticizing things and people in general. Actually, Jimmy is very frustrated man. He always criticizes to the people generally. This is his general nature. He always criticizes the Sunday newspaper. जो उसमें न्यूज छपते हैं उनको क्रिटिसाइज करता है. As well, he also criticizes the religious rituals. किसी के चर्च की जब घंटियां बजती तब उसे प्रॉब्लम होती है. जब कोई चर्च जाता तो उसे चिढ़ता है वो. Jimmy gets irritated when he hears that Alison is going to church with Helena. और उसे जब भी गुस्सा आता है when he knows about Helena or Alison when both are going to church. Jimmy personally attacks on Alison and her mother, and it is the habit of Jimmy Potter. He always criticizes the family of Alison. क्योंकि रीजन क्या है? Here is the region of class struggle. Jimmy belong from the lower middle class or middle class, while Alison belong from the upper class. So he is against the Alison's family. और उसे अलीसन को, उसकी मदर को, उसके भाई को, नेजल को, उसके फादर को, ऐसे सब क्रिटिसाइज करता रहता है जो जिमी पॉटर है. फॉर सच बिहेवियर हेलना सेज दैट ही डिजर्व फॉर स्लैप. लेकिन हेलना गुस्सा आ जाती है. अलीसन तो हैबिट पड़ी हुई है अपने हस्बैंड की, बट जिमी बाउंस हर फॉर द सेम इन रिटर्न. जैसे हेलना कहती है यू शुड बी स्लैप्ड बिकॉज यू आर स्पीकिंग सच मैनर, तो तुरंत ही जिमी कहता है कि मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना, बदले में थप्पड़ ही मिलेगा. Jimmy explained the death of his father when he was 11 years old. Now there is two things why he is so much irritated. First, that the youth of England
was in 1955 after 1956 when the play was staged or premiered. India got freedom in 1947. So many the persons who were living or serving in India uh, back to England, and also the youth were jobless at that time. So फर्स्ट उसे फादर की अपने टेंशन थी, जब वो डेथ हुई थी उनकी, तो वो डेथ, बिट्रायल, है ना, इन चीज़ों से परेशान था। दूसरा, जॉबलेस थे इसलिए परेशान थे। तो जिमी इसलिए इरिटेट रहता है, ही वांट्स टू टेल अदर्स हाउ मच ही एक्सपीरियंस्ड अबाउट लाइफ, बिट्रायल एंड डेथ, बट इट प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट ऑन एनीवन। व्हेन ही वाज टेलिंग हिज ओन प्रॉब्लम्स, then no one was so much eager to listen him, neither the Alison nor the Helena. When Helena feels that Jimmy and Alison are so much disturbed in their life, she secretly sends a telegram to Alison's father to come and take away Alison's. जैसे ही हेलेना को पता लगता है कि उनमें झगड़ा चल रहा है अलीसन एंड जिमी पॉटर में, वो बिना अलीसन से पूछे, बिना अलीसन को बताए बाद में इन्फॉर्म करती है, बट शी सेंड अ सीक्रेट टेलीग्राम टू द फादर of Alishan, Mr. Colonel Redfern. And next day, very much next day, Jimmy received the telephonic message. इधर क्या होता है? Jimmy received a telephonic message that Hug Tanner has suffered a stroke and admitted to the hospital, and later she was died. So Jimmy thinks Alishan will with him, but she refuses. When he heard such news, such sad news, उसे लगता है उसकी वाइफ उसके साथ जाएगी, लेकिन अलीशन पहले से उसे पसंद नहीं करती, नीदर मिसेज हकटैनर नॉट टू हर्सन, वो मना कर देती जाने के लिए, और उससे जिमी पोर्टर को और गुस्सा आता है। नाउ द सीन सेकेंड स्टार्ट विद द एक्ट सेकेंड. The next evening, Alison's father, Colonel Redfern, arrives, but he is not happy to learn that Alison's want to leave Jimmy. Alison's relationship with Jimmy Porter basically supported by Alison's father, but not by the mother. उसका फादर चाहता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन मदर नहीं चाहती है कि अलीशन जिमी के साथ शादी करती। और जब वो कर्नल रेडफर्न उसको लेने आते हैं नेक्स्ट डे अलीशन को, तो वो नहीं चाहते कि अलीशन शुड गो विद हिम। ही रिमेंबर दैट इट वाज अलीशंस मदर हु अपोज्ड अलीशंस मैरिज विद जिमी, कि उनकी मदर ने इस चीज़ को अपोज किया था। सो उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ अभी भी चल रही है। Further, the colonel admits that there is much truth in Jimmy's description him as just one dose of sturdy old plants left over from the Edwardian wilderness that cannot understand why the sun is not shining anymore. Means now the time when Colonel Redfern also returned to England from India, because when he was the chief of the army in India's Maharaja army, so he was working here and he has much dream, but all the dream of Colonel Redfern vanished when India got freedom in 1947, and he had to return back to England, and he also was jobless, as well as he felt himself as a burden on the earth. So उन्हें लगता है कि ये सब normally नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, but it is the cause of the unemployment was the in Edwardian time, the King Edward time. All the youth was suffering, all the youth actually were suffering. So he supposed, Redfern supposed, that that's why Jimmy Porter is also suffering. कर्नल रेडफर्म एक्सप्लेन्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया टू हिज डॉटर. कर्नल रेडफर्म अपना एक्सपीरियंस अपनी डॉटर एलिसन को बताते हैं ही वॉज अ कमांडर ऑफ महाराजा आर्मी, जब वो महाराजा के आर्मी कमांडर थे, एंड इंडियन स्टेट व्हेन इंडिया वाज नॉट फ्री. अब कब वो थे? जब इंडिया फ्री नहीं था. लेटर में इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ही वाज आल्सो जॉबलेस. So that experience he told her daughter, his daughter Alishan, while now he feeling absolutely unimportant and unwanted. अब वो कैसे हैं? अब वो अपने आप को चाहते नहीं कि वो किसी काम के बचे हैं, खुद को अनइम्पोर्टेंट मानते हैं और अनवांटेड, जरूरी नहीं है. द सेम थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग इन द माइंड ऑफ कर्नल रेडफर्न एंड जिमी पोर्टर. अगर हम यहाँ पे देखा, दोनों चीजें एक से चल रही है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है. ही इज रिटायर्ड मैन, एज्ड मैन, while Jimmy Potter is young man, बट दोनों को एक सा ही लगता है. Alison leaves with her father and gave a note to Cliff to pass Jimmy. Alison अपने फादर के साथ चली जाती है, but she want to tell something Jimmy Potter. That's why she wrote a note and gave to the Cliff to pass the Jimmy. But Jimmy never care about anything. First Helena want to go with her, later change her mind. जैसे ही Alison अपने फादर के साथ जाती है, then Helena decided that she will also leave from here, but after that she thought
कि उसे कोई काम है बर्मिंघम में किसी जॉब के अपॉइंटमेंट के लिए और वो वहां पे रुक जाती, बाद में वो नहीं जाती। शी स्टेड विद जिमी पोर्टर। Jimmy is in a furious mood. Mrs. Tanner had died and he is sitting for 11 hours. जब उनकी डेथ हो जाती है मिसेस टैनर की, because he was so much fond and she was also so much fond of Jimmy Potter. Helena gave him a note which Alison left for him. जो अलीशन नोट छोड़ जाती है वो हेलना जिमी पोटर को दे देती है, लेकिन जिमी पोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता उस नोट से। He reads note. Alison has written that she going because she is desperately in need of peace, कि वो घर से जा रही है, उसे शांति की जरूरत है, and that he will always have a deep loving need of Jimmy, लेकिन उसे हर समय जिमी की लिए प्यार रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, उसकी याद रहेगी। ऐसे वो नोट लिख के जाती है, मतलब पर्सनल नोट शी रोट फॉर हर हस्बैंड, बट जिमी पोर्टर नेवर केयर्स फॉर दैट। Jimmy asks Helena what she is doing here, but she tells him the news of Alison's pregnancy and Jimmy does not react excitement. पहला जिमी पूछता है उससे कि अलीशन भी चली गई, then what you are doing here? हेलना इसका जवाब नहीं देती कि वो यहाँ किस लिए रुकी हुई है, तुरंत ही क्या बताते उसे कि अलीशन प्रेग्नेंट है। बट इस न्यूज का जिमी पोर्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसे बीइंग मतलब फादर बनने वाला है, हर वाइफ इज प्रेग्नेंट, बट उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे सुन के निकाल देता है। अगेन आई वांट टू रिमेंबर ऑल दी गाइज जो पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। नाउ ही सेज अलीशन शुड सेंड अ बंच ऑफ फ्लावर टू मिसेस टैनर इन कॉफिन। अलीशन अपने फादर के साथ गई है, एक नोट छोड़ के गई है, वो प्रेग्नेंट है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो क्या सोचता है कि अलीशन कम से कम एक गुलदस्ता भेजना चाहिए था, मिसेस टैनर की डेथ हो गई उसके लिए। ही आस्क्ड हेलेना टू लीव हर इन थ्रेटनिंग मैनर, जब वो धमकाते हुए मैनर में हेलेना से कहता है कि तुम जग गई क्यों नहीं यहाँ से, यहाँ पे क्यों रुकी हुई हो। एट दिस हेलेना स्लैप्ड हिम, हेलेना उसको थप्पड़ मार देती है। बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी किस्ड हिम, तभी तुरंत ही वो उसे हक करती किस करती है, एंड दे स्टार्ट देयर न्यू रिलेशनशिप। नाउ द हेलेना बिकम्स द मिस्ट्रेस ऑफ जिमी पोर्टर। पहले वो उसे पसंद नहीं करती है, एंड लेटर शी एग्रीड ऑन द ऑल कंडीशंस। नाउ एट थर्ड सेवरल मंथ पास्ड, अलीशन गए कई महीने हो गए, वंस अगेन इट इज संडे, फिर से संडे है, अलीशन थिंग्स रिप्लेस्ड बाय हेलेना, अलीशन जा चुकी है। नाउ ऑल द थिंग्स यू नो हियर इज अ सिंबल or symbolism कि not only the things that used by the Elysian but also the Helena become like not directly but then she become the mistress of Jimmy Potter, she is living like the wife, she became mistress of Jimmy Potter and also accustomed with her smoking pipe। पहले उसे उसके smoking pipe से प्रॉब्लम होती जब जिमी पॉटर पीता था उसे, लेकिन now अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। now she is very much living in happy and compatible with Jimmy Potter and compatible with the pipe of Jimmy Potter, but Jimmy has not stopped to criticize others, लेकिन उसका जो नेचर है जिमी का वो चेंज नहीं होता है। He ridicules religious rituals people of Midland for indulging in midnight invocation of Coptic goddess of fertility। जब भी वहाँ पे कोई रिचुअल होता है, जब भी Coptic goddess of fertility को इन्वोकेशन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मिडलैंड के जो लोग हैं वो उनको वैसे क्रिटिसाइज करता है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। नाउ क्लिफ वांट्स टू लीव स्वीट हॉल, अलीशन है नहीं, क्लिफ वहां से जाना चाहता है बिकॉज जिमी पोर्टर इज कंपैटिबल विद हेलेना एंड हेलेना इज कंपैटिबल विद द यू नो जिमी पोर्टर, पर क्लिफ के लिए कोई नहीं है वहां पे, सो ही वांट टू लीव फ्रॉम दैट फ्लैट, ट्राई टू समथिंग एल्स, स्वीट हॉल ही बंद करना चाहता है, उसके साथ में कुछ और ट्राई करना चाहता है। जिमी क्रिटिसाइज फीमेल सेक्स इन हिज सेंस वुमेन ट्राई टू ब्लीड मैन, ही इज लिविंग विद फीमेल बट इज टू क्रिटिसाइज टू फीमेल, कि जो महिलाएं हैं वो आदमी को हर समय जैसे ट्राई टू ब्लीड मैन, किसी को खून निकालने जैसे कर देना, डेथ तक ला देना, मतलब महिलाएं जो वो आदमी को हर समय मारना चाहती हैं। दे अलाउ टू एक्सप्लॉइट देम, और कहते हैं कि आदमी ही अलाउ करते हैं महिलाओं को दैट दे शुड बी ट्रीटेड इन सम मैनर। अलीशन अनएक्सपेक्टेड कम्स हर होम एंड सेज हैज नो बिजनेस, तभी क्या होता है अलीशन आ जाती है, किसी को पता नहीं होता कि वो सडनली आ जाएगा, और वो देखती है कि लाइफ चल रही है, रूटीन चल रहा है, हेलेना एंड जिमी पोर्टर आर लिविंग इन वेल मैनर, फिर वो कहती है जब चीज़ों को सेंस कर लेती है कि भाई हमारा कोई काम नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है यहाँ, तुम लोग आराम से रहो, जिमी और हेलेना दोनों रह सकते हैं आराम जैसे तुम रह रहे थे, मैंने तुम्हें इंटरफेयर किया उसके लिए सॉरी, ऐसे बोलती है वो। हेलेना नाउ फील्स अ रिलेशनशिप विद जिमी इज ऑब्जेक्शनेबल, तभी हेलेना को लगता है दैट शी इज समथिंग कमिटिंग वेरी बैड, नाउ शी इज कमिटिंग द सिन because she is entering between the relationship husband and wife while she is not
is the wife of Jimmy Porter, but still she is living when Helena was not present and wants to leave. और हेलना वहां से जाना चाहती है. She called that house a mad house. किस हाउस को? जहां वो रहती थी, जहां जिमी पॉटर के साथ रहती थी, उसी उसके फ्लैट को मैड हाउस कहते हैं. हेलना फाउंड जिमी बोर्न आउट ऑफ हिज टाइम एंड देयर इज नो प्लेस पीपल लाइक हिम. हेलना उसको कहती है कि यहाँ जिमी जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. वो ऐसे समय पैदा हुआ जैसे उसके समय का ही समय नहीं था, आउट ऑफ टाइम पैदा हुआ. अगर इफ वी कंपेयर दिस लाइन विद शेक्सपियर हेमलेट, जब वो कहता है हेमलेट पहले से लिखी में, जब से पता लगता है कि उसकी मदर की शादी अंकल से हो गई, उसके फादर की डेथ हो गई, तो वो कहता है कि काश मैं सही समय पैदा हुआ होता, आउट ऑफ जॉइंट टाइम पैदा हुआ हूँ, कि मैं चीज़ों को सही कर पाता और मेरी नसें फट रही हैं. जब ये soliloquy होता है, ठीक वैसे यहाँ वो बोलती है कि ही वॉज बोर्न आउट ऑफ द जॉइंट, सॉरी शी वॉज बोर्न आउट ऑफ द टाइम. हेलना लीव्स अलीसन्स हाउस एंड अलीसन हैज गॉट मिसकैरेज. हेलना वहां से जाना चाहती है और उसे पता लगता है कि अलीसन मिसकैरेज हो गया है और उसके बच्चा नहीं होगा. हेलना कॉल्स जिमी बिफोर लीविंग ही इज प्लेइंग ट्रम्प. तभी हेलना क्या करती है, बुलाती है उसको कि वो आए और उसे पता चले कि मिसकैरेज हो गया, लेकिन वो ट्रम्प बजाने में बिजी है, जैसे कि उसकी आदत है हर समय बजाते रहना. जिमी सरप्राइज्ड हेलना डिसीजन एंड सेज एवरीबॉडी वांट टू एस्केप. और जिमी को नहीं पता था कि हेलना वहां चलने से तैयार हो जाएगी या चली जाएगी. उसको थोड़ा सा अजीब लगता है और कहता है कि हर कोई यहाँ से बचना चाहता है. फ्रॉम द पेन ऑफ बीइंग अलाइव एंड एवरीबॉडी वांट टू एस्केप फ्रॉम लव. हर कोई प्यार से दूर जाना चाहता है. ही सेज लव डिमांड स्ट्रेंथ एंड करेज व्हिच few people have. क्यों कहता है ये वो? बिकॉज आफ्टर married with Elysian, Jimmy Potter married with Elysian but couldn't get द रिलीफ जो वो चाहता था, जो वो सुकून चाहता था, जो वो स्पिरिट चाहता था, वो उसे नहीं मिलती है. बट व्हेन अलीशन लेफ्ट विद हर फादर ही गॉट मच रिलीफ फ्रॉम हेलना. अब उसे लगता है कि सारी चीजें खुले में करने के लिए लोगों को स्ट्रेंथ की जरूरत है, करेज की जरूरत है. लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उस प्यार के लिए उनमें समय वो ताकत नहीं होती है. अलीशन एडमिट्स हर मिस्टेक दैट शी हैड बीन ऑलवेज रॉन्ग इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड लिव्ड लाइक सेंट. नाउ यू नो अलीशन रियलाइज्ड दैट शी वॉज रॉन्ग बिकॉज जब तक वो उसके साथ रही वो कंपेटेबल नहीं हो पाई है. जबकि हेलना वहां कंपेटेबल हो गई है, उसने उसके साथ शादी की थी, लव मैरिज की थी, वो कंपेटेबल नहीं हो पाई. लेकिन हेलना आकर कुछ दिन में कंपेटेबल हो गई. तो वो कहती लग रहा कि मुझे ही मिस्टेक थी मेरी जिंदगी में कि मैं सेंट की तरह चीजों को लेती रही, मैंने कभी चीजों को अपने हक के साथ नहीं समझा, अलीशन कहती है. और दिस इज द लास्ट. अलीसन इज नाउ कंप्लीटली ओवरकम बाय हर इमोशंस. वो खड़े खड़े वहां पर टूटने लगती है. रीचिंग हर फेस टुवर्ड्स जिमी, रोते हुए कहती है डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख रहे हो, आई एम इन द मड एट लास्ट, कि जैसे मैं कीचड़ हूं, मैं फंसी हुई हूँ इमोशनली. आई एम ग्राउलिंग, आई एम क्रॉलिंग, फंसे हुए रेंग रही हैं. शी इज देन कोलैप्स एट हिज फीट, वो उसके पैरों पर गिर जाती है. ही रिमाइंड्स हर द गेम व्हिच दे यूज्ड टू प्ले, और वो उसे वही गेम याद दिलाती है बियर और स्क्वायरल का. ही रिकॉल्स हर अ पुअर स्क्वायरल, वो उसको बोलता है पुअर स्क्वायरल, एंड शी रिकॉल्स हिम पुअर बियर द प्ले एंड. और रिकन्सिलेशन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, दोनों रहने लगते हैं, पहले अच्छे से रहने लगते हैं और प्ले एंड होता है. सो गाइस, दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ लुक बैक इन एंगर. I hope that you like the video. Thank you for watching the video. Thank you.